Good morning, children. This is Vaibhav Kulkarni, TGT Maths, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Usmanabad, Taluka Turzapur. Actually, you might have seen so far so many videos I have prepared on class 9th standard Maths, class 10th standard Maths. My target is to finish off this 9th standard Maths as well as 10th standard Maths for the students. And along with that, I have also prepared some videos called as Basic Maths for All, in which so far I have almost completed 20 videos and I will be taking up to 40 videos. So the content of the videos is to help the students who are having the problems in their basics. If the students see those basics and they try to do the problems of 9th and 10th standard, I feel that they will feel 9th and standard Maths very easy, because as an experienced teacher from last 26 years and plus some 3 years outside Navodaya, I have come to know some of the difficulties that the student face when they come in 9th and 10th standard. So with that intention, I have prepared the videos for Basic Maths also. Now this Basic Maths video can be seen even by 6th standard students, 7th standard students, 8th standard students, 9th standard students and 10th standard students. My channel name, as you all know, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. This is my channel name. The purpose of making this channel is to give standard coaching to the students who are suffering a lot because of this corona pandemics. Students are finding it very difficult to get the teachers. Most of the colleges are closed, most of the schools are closed, and in that context, students should be able to do maths. With that noble intention, this channel has been started. So I hope you might have already started seeing my channel. I want that you should subscribe it, share it, and even you can share your comments so that we can have an interactive class through mobile and through my internet, through my YouTube channel, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. And again, one good news that I am going to give you all, dear children, is I am also shortly starting this on my Facebook also. So shortly you will be seeing me on the Facebook also. You need to search for my page and then you click on my page and then you will get all the updates on the Facebook also. So dear children, try to understand the noble intention and share with as many people as you can. And you are free to share your views in the comment box. In the topic triangles, we have already completed the first exercise. Now in order to understand the second exercise, you need to understand this theorem. इस theorem को समझना जरूरी है. अगर theorem समझ में आ गया तो प्रॉब्लम अपने आप कर सकते हो. टीचर के बताए बगैर आप खुद समझ सकते हो. अगर theorem ही समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम नहीं कर सकते हो. तो understand the concept first. The concept says the angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. That means what? If I draw an isosceles triangle, so you know isosceles triangle properties, you know it very well. The property says two sides are equal. So suppose if I take an isosceles triangle, let me call it as say A, B and C, and this side is equal to this side, then the angles opposite to this side is equal to the angle opposite to this side. That means what? This angle C is equal to this angle B. That is what I have to prove. So in order to prove a theorem, you need to know 4 steps. First is data. What is data? You have to write some information about the figure drawn. That is called data. So what I'll do here, children, data I'll write here. Data means what? Whatever you are writing about the triangle. Triangle ABC is isosceles where AB equal to AC. So I'll write the same thing. Triangle ABC is isosceles where AB equal to AC. First point. To prove. Next point is what? To prove. What we are supposed to prove? We are supposed to prove that angle B equal to angle C.
So what I'll write here, angle B equal to angle C. That is what I have to prove. Next, construction. With this information I can't prove the theorem. So what I'll do is I'll make some construction. What is that construction I am drawing? Construct this angle bisector. What is that? Construct this AD such that it bisects angle A. आप AD ऐसे बनाओ ताकि एंगल A को वो बाइसेक्ट करे. तो मैं यहाँ लिखूंगा कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में क्या लिखूंगा? कंस्ट्रक्ट AD such that it bisects angle A. ओके, इट बाइसेक्स एंगल ए. तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट. फिर से मैं रिपीट करूं, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, फाइन, जहां पर ए बी और ए सी इक्वल है. नेक्स्ट क्या है? ए डी क्या है? एंगुलर बाइसेक्टर है. और हमको प्रूव क्या करना है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, ये हमको बताना है. तो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आएंगे, प्रूफ. नेक्स्ट पार्ट की तरफ आएंगे, प्रूफ. प्रूफ कैसे करना है मैं आपको बता दूं. इन ट्राइंगल ए डी बी की बात मैं कर रहा हूं, ए डी बी और ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी. इस दो ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो देखिए कंपेयर करो, कंपेयर दीज टू ट्राइंगल्स. इट्स ऑलरेडी गिवन दैट ए बी इक्वल टू ए सी. ये मैं नहीं कह रहा हूं, इट्स गिवन टू यू, ऑलरेडी आपको दे दिया है. तो व्हाट इज गिवन टू यू? जो भी आपको दिया है आप उसको लिखिए. तो पहला पार्ट में लिखूंगा ए बी इक्वल टू ए सी. हाउ? इट्स गिवन, इट इज गिवन. फर्स्ट पार्ट ए बी इक्वल टू ए सी, इट्स गिवन. नेक्स्ट, एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी इक्वल है. यहां पर ऑलरेडी हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया. देखो, कंस्ट्रक्ट ए डी सच दैट इट बाइसेक्स एंगल ए. तो पॉइंट नंबर 2 टू बी नोटेड, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी. ये कैसे हो गया? बाय कंस्ट्रक्शन. कहाँ से आया? बाय कंस्ट्रक्शन. सर, एक ट्रायंगल का एक साइड और एक एंगल, एक ट्रायंगल का एक साइड और एक एंगल इक्वल हो गया, तीसरा भी इक्वल हो रहा है. ए डी इज द कॉमन साइड. तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यस, ए डी इज इक्वल टू ए डी, बिकॉज, कारण क्या है बच्चों? कॉमन साइड. कॉमन साइड, कॉमन साइड है. तो व्हाट इज इट? टू साइड्स एंड वन इंक्लूडिंग एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू टू साइड्स एंड वन इंक्लूडिंग एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल. सो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. यानी ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए डी सी क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया. और बच्चों, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, यू हैव टू ऑलवेज राइट द रीजन हियर. व्हाट इज द रीजन? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल. बच्चों, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बचा हुआ सारा इक्वल हो जाएगा. यानी क्या होगा? दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. यानी क्या होगा बच्चों? एंगल ए बी डी, एंगल इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल ए सी डी इक्वल होगा. ये कैसे आया? बिकॉज सी पी सी टी सी हो गया, दैट्स ऑल. तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, दैट्स ऑल. तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड. तो उम्मीद है ये थ्योरम कैसे प्रूव करना आपको समझ में आ गया होगा. थ्योरम प्रूव करने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं. पहला डेटा होता है. डेटा में आप क्या करते हो? आप इंफॉर्मेशन लिखते हो. जो फिगर आप बना रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हो. ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर दो साइड्स इक्वल है. ये इंफॉर्मेशन, प्राइमरी इंफॉर्मेशन आपने लिखा. नेक्स्ट टू प्रूव में आप क्या करते हो? जो आपको प्रूव करना है.
यानी आपको प्रूव क्या करना है, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है ये प्रूव करना है। तो हमने लिखा टू प्रूव क्या है। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन अंदर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन कैसे किया है, कंस्ट्रक्ट ए डी सच दैट इट बाइसेक्स एंगल ए, यानी ये बी ए सी और ये सी ए डी इक्वल हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ लिखा है। अब ये दो ट्राइंगल को मैंने ले लिया, ये इसके बराबर है, ये कॉमन है और ये एंगल इक्वल है, यानी टू साइड्स आर इक्वल इंक्लूडिंग एंगल इज इक्वल, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल इक्वल हो गया, दैट्स ऑल, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो अभी सेकंड थ्योरम की तरफ आएंगे हम। आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, सर अगर दो साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो उसके सामने वाला एंगल इक्वल होता है क्या? दो एंगल इक्वल होने के बाद उसके सामने वाला साइड इक्वल होता है क्या? यस, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वाइस वर्सा इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल then the side opposite to equal angles are also equal, and that's what we have to prove. The side opposite to equal angles of a isosceles triangle are equal. तो अभी यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर एक ट्रायंगल आपने ले लिया, एक ट्रायंगल अगर आपने ले लिया और एक ट्रायंगल लेकर आप मान लीजिए इसको मैंने कहा ए, इसको मैंने कहा बी और इसको मैंने कहा सी, और ये दो एंगल इक्वल है। बच्चों एक काम हम करेंगे यहाँ पर, थोड़ा इस आइसोसेलेस की जरूरत नहीं है, हम एक काम करेंगे, इसको सिर्फ कहेंगे ट्रायंगल कहेंगे। तो मान लीजिए एक ट्रायंगल मेरे पास है और वो ट्रायंगल कैसा वाला है, दो एंगल्स इक्वल है इसके, यानी जो इन्फॉर्मेशन आपको है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर क्या लिखोगे, डेटा में क्या लिखोगे, व्हाट इज दैट यू आर गोइंग टू राइट हियर, डेटा के अंदर आप लिखोगे, डेटा के अंदर आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। नेक्स्ट टू प्रूव, टू प्रूव मुझे प्रूव क्या करना है बच्चों, दो एंगल्स इक्वल है तो इनके सामने वाले साइड, यानी इसके सामने वाला जो साइड है ए सी, इसके सामने वाला साइड कौन सा है ए सी, और इसके सामने वाला जो साइड है वो ए बी इक्वल है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ए सी इक्वल टू ए बी, ये मुझे प्रूव करना है। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या जरूरत पड़ेगा, फिर वही कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। क्या है, हमने एक एंगल बाइसेक्टर बनाया, उसका नाम हमने क्या कहा, AD कहा। तो यहां पर मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट AD सच दैट इट बाइसेक्स एंगल ए। ये हो गया हमारा इट बाइसेक्स एंगल ए। नेक्स्ट आता है प्रूफ, प्रूफ, प्रूफ। तो प्रूफ आप क्या कर सकते हो बच्चों, सिंपल बात है, दो एंगल्स, ये इस ट्रायंगल के अंदर और इस ट्रायंगल के अंदर, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और एक नॉन इंक्लूडिंग साइड जो है वो भी कॉमन है। तो बात खत्म। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रूफ में आप बोल सकते हो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। कौन कह रहा है बच्चों, ये गिवन, वो खुद कह रहा है, वो खुद कह रहा है। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी कहां से आ गया, कंस्ट्रक्शन। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, फ्रॉम वेयर इट हैज कम, बिकॉज कंस्ट्रक्शन। सर ए डी इक्वल टू ए डी, यस, ए डी इक्वल टू ए डी। ये कहां से आया, क्यों आया, बिकॉज कॉमन। तो बच्चों पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड,
two sides of one triangle is equal to two sides of another triangle. One side is common, so two angles are common. One non-including side is equal, so two angles, one non-including side, angle, 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 side. So what we can say from equation 1, 2 and 3 आप ऐसे बोल सकते हो कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज किया आपने? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, दैट्स ऑल, एंगल एंगल साइड। तो इससे अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनका एंगल के बारे में क्या ख्याल है आपका, सॉरी उनके साइड के बारे में आपका क्या ख्याल है बच्चों? ऑटोमेटिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी। ये कहाँ से आया? सी पी सी टी सी, सी पी सी टी सी। कुछ किताबों में इसी प्रॉब्लम को एक अलग तरीके से भी पेश किया है। मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा और आपसे कहूँगा कि यू ट्राई इट एज होमवर्क। सर किस तरह से इसको दूसरे तरीके से प्रूव कर सकते हैं? सिंपल है बच्चों, देखिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल के अंदर इन दिस two angles are equal. If two angles of a triangle are equal, then we can say that third angle will be equal because तीनों मिला के 180 है, तीनों मिलाकर 180 है। अगर दो एंगल्स को जोड़ने के बाद सेम हो रहा है तो तीसरा एंगल सेम होगा। If sum of two angles of a triangle are equal, then third angle has to be equal. तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये थर्ड वाला जो एंगल है और ये थर्ड वाला जो एंगल है वो इक्वल होगा। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस साइड इज कॉमन। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ए एस से कॉन्ग्रुएंसी रूल के अंदर। एंड इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट अगेन आई कैन से दैट दीज टू साइड्स आर इक्वल। सो चिल्ड्रन, these are the two important theorems that you should know if at all you want to solve the next exercise in the topic triangle. The first says what? The first theorem says angle opposite to the equal sides of an isosceles triangle are equal. यानी अगर isosceles triangle आप लेते हो या फिर कोई ऐसा ट्राइंगल लेते हो जिसके दो साइड इक्वल हैं तो दोनों साइड के इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स इक्वल होंगे। ट्राइंगल्स के इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। दोनों एंगल अगर इक्वल है तो सामने वाले साइड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगले वीडियो में हम आपको इसी एक्सरसाइज के ऊपर, इसी थ्योरम के ऊपर संबंधित प्रॉब्लम्स हम आपको बताएंगे।